Hello students, welcome back to online classes of Tribhuvan Devi Academy. In my last video, I have discussed the basic problems of economy. That is your chapter number 2 in microeconomics. So we have discussed in the last video that what are the basic problems of economics. And the points which were discussed in that last video were unlimited wants, limited resources, and the last were alternative uses of resources. So these were the points we discussed in detail, that the basic problem of an economy. Today, in continuation with the same chapter, we shall discuss the central problem of an economy. Means what are the central problems? वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके केंद्र में सारी चीजें घूम रही हैं? Clear? Getting my point? So the central problem of an economy, whether it is rich, poor, developed or underdeveloped, every economy must face three central problems. किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, चाहे बहुत समृद्ध हो, गरीब हो, पिछड़ी हुई हो या विकासशील हो, उसको तीन तरह की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, that has to be gone through that. The number one is what to produce. Listen carefully. The problem number one, point number one, that what to produce. Number two, how to produce. And number three, for whom to produce. So these are basically the three main problems, main central problems of an economy that we are going to discuss today in this video. The first problem is what to produce. What to produce मतलब क्या बनाएं? See, in every economy there is 2 points. दो चीजें होती हैं, demand and supply. Demand क्यों लोग करते हैं? Why do the people demand? To satisfy their needs, to stay, to live, or to fulfill their different wants or desires. People needed certain kind of products, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिमांड. तो डिमांड होती है तो उसके लिए क्या होता है? इकोनॉमी को सप्लाई करना पड़ता है. इकोनॉमी में दो चीजें चलती हैं, एक डिमांड, एक सप्लाई. डिमांड वो है जो आपकी जरूरत है और सप्लाई वो है जिन चीजों से आपकी जरूरत पूरी हो रही है. एंड टू मेक दिस प्रोसेस इफेक्टिव, सप्लाई करने के लिए there has to be a system of production. Production करना जरूरी है, because without being produced any product, without being produced could not be entered into any economy. किसी इकोनॉमी में, by saying economy मेरा मतलब है मार्केट. किसी भी मार्केट में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तक चीजें बनेंगी नहीं तो आएंगी नहीं. ठीक है? तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई? What to produce. क्या बनाया जाए, किस चीज का डिमांड? बिकॉज अगर 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों की बात हो तो वी कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया कि इन लोगों को क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोड्यूस. और यहीं पर बात होती है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की. खैर, दीज आर द टर्म्स विच वी शैल डिस्कस लेटर ऑन, बट फॉर नाउ it is worth to understand that to fulfill the demand, supply is needed, and supply comes from production. And once you know that production is necessary for supply, the first problem which comes is what to produce. There are n number of requirements, n number of wants or demand in the market. But being a manufacturer, this is a kind of problem कि क्या बनाया जाए. ठीक है? What to produce and
हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसी के साथ एक पॉइंट और है कि दैट इज पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, एट द सेम टाइम हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक बार ये डिसाइड हो जाए कि हाँ हमको ये बनाना है, तब अब उसको हाउ टू प्रोड्यूस, ओके। तो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी arises because resources are scarce and can be put to alternate uses। हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। And under this problem, an economy must decide on the kind of goods and services it would like to produce using existing resources। And once the different commodities for production are selected, an economy also needs to choose the level of quantity that need to be produced। समझ में आ रहा है कि मतलब पहले तो ये डिसाइड करना कि क्या बनाना है और फिर उसको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। लेट्स अज्यूम एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। से देयर इज अ फार्मर, एक किसान है एंड ही हैज अ लैंड फॉर फार्मिंग करने के लिए उसके पास एक खेत है। तो उसके पास अल्टरनेटली वो कई तरह की क्रॉप प्रोडक्शन उसमें कर सकता है, राइस, व्हीट, पल्सेस, ठीक है, इवन वेजिटेबल्स, कुछ भी बना सकता है। बट फार्मर हैज टू डिसाइड कि क्या उपजाए जिससे कि वो इकोनॉमी की में डिमांड जो है, जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई कर सके, ठीक है। एंड वंस ही डिसाइडेड कि चलो ठीक है आई विल प्रोड्यूस व्हीट, ठीक है, मैं व्हीट की खेती करूंगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वांटिटीज ऑफ व्हीट दैट नीड टू बी प्रोड्यूस, दैट कि कितनी क्वांटिटी में बना। बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम कम्स दैट अ पर्टिकुलर रिसोर्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस। गेहूं की खेती अगर किसान करके गेहूं मार्केट में भेज रहा है तो उस गेहूं से आटा भी बन रहा है, मैदा भी बन रहा है, सूजी भी बन रही है, ठीक है, खाने वाले लोग भी हैं, यूज करने वाले लोग भी हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितना गेहूं सफिशिएंट होगा मार्केट में और कितने का लोग क्या बनाएंगे, कितना आटा ज्यादा लोग खा रहे हैं या मैदा ज्यादा लोग खा रहे हैं या सूजी ज्यादा लोग खा रहे हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड अंडर दिस पॉइंट द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस and I'm sorry, in what quantity to produce. And number 2, the second problem is how to produce. How to produce is again a problem because there are different means of production. Some are capital intensive, some are labor intensive. कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि प्रोडक्शन टेक्निक भी अलग है। कई चीजों का इस्तेमाल करके हम सेम चीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव, अगर हम किसी एक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, ब्रिक ईंटा बनाने की कोई कंपनी की बात करें, ठीक है, तो ब्रिक कैन बी मेड बाय यूजिंग बोथ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज लेबर इंटेंसिव और इट इज कैपिटल इंटेंसिव। बाय सेइंग लेबर इंटेंसिव, जहां पर लोगों की जरूरत आवश्यकता ज्यादा है, और कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जहां पर मशीनरी और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। तो ब्रिक इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ईदर बाय लेबर इंटेंसिव रिसोर्सेज और बाय कैपिटल इंटेंसिव रिसोर्सेज। तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि किस तरह का इसमें हम किस रिसोर्स का यूज करके इस प्रोडक्शन को करें, मेरा कॉस्टिंग कितना आएगा। अगर सपोज इफ आई एम यूजिंग और आई एम प्रोड्यूसिंग द ब्रिक बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव यूनिट, मेरा कॉस्ट क्या आएगा, पर यूनिट में कितने में बेचूंगा, उसमें मेरी आमदनी क्या होगी। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द माइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स। और फिर दूसरी अगर तरफ जाए तो वही क्वेश्चन कि कितने की मशीन आएगी, कितने की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको खर्चा करना पड़ेगा,
क्या मार्केट में अगर ये मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज फॉर whom to produce. Clear? The problem for whom to produce is related to the distribution of the produced output among the factors of production. किसके लिए बना है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है. Factors need to be compensated for their efforts in producing an output. This compensation arises from the output produced. How this output is distributed from the problem for whom to produce. किसके लिए बनाए, ये और समस्या आती है कि कौन कौन सा सेक्शन है मार्केट में, कितने लोग हैं मार्केट में, those are going to use the product. ठीक है. Take the example. The one, if any farmer decides on technique of production and he produced wheat. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने हमने बात करी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. एक किसान है और उसके पास लेबर इंटेंसिव यूनिट रिसोर्सेज हैं प्लस टेक्निकल रिसोर्सेज भी हैं. तो अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके द्वारा वो प्रोड्यूस करे. ठीक है. ही देन डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी टू दिस फैक्टर. अगर वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेकर अपने प्रोडक्शन करता है तो उससे आने वाले फायदे डायरेक्ट तो उसी को मिलेंगे नहीं, उससे कई लोग रिलेटेड हैं. ठीक है. तो मान लो अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं अपना काम सारी टेक्नोलॉजी से ही कर लूँगा तो लेबर तो बैठ जाएंगे, लेबर का खर्चा पानी कैसे चलेगा. और once a labor gets barred from the work, he has to face serious consequences. बहुत तरह की consequences उसको झेलने पड़ सकते हैं, which otherwise would not be in case if he would have been given work to do. और being a producer होकर एक आदमी सोच सकता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है लेबर के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा. टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे सस्ता पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड अगर ये सस्ता पड़ रहा है सिर्फ मेरे लिए, और दूसरी तरफ क्या होगा कि कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बैकवर्डनेस, पुअरनेस और ये सारी चीजें सब होने लगेंगी. तो इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा. प्रॉब्लम आके खड़ी हुई कि नहीं. लेबर इंटेंसिव यूनिट और टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव यूनिट, दो तरह के रिसोर्सेस हैं. अगर लेबर से काम कराते हैं तो जो टेक्नोलॉजी है उससे टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन दे सकती है बनस्पत लेबर के. बट अगर हम क्वालिटी और वो सारी चीज़ों पर ध्यान देने जाएंगे तो एक तरफ लेबर बेकार होंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. So these are the problems which come under the central problem of an economy. So with this, I'm ending this video today. I don't want to go long because it would be hard for you to understand also. So again, my request to you, to all of you, go through this video, listen this video time to time, 3 times, 4 times, and try to make a point, note a point, which point you have not understood. कोई पॉइंट नहीं समझ आया, पूरा वीडियो ही नहीं समझ में आया, कुछ नहीं अभी तक समझ में आया, सो यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क. आप पूछ सकते हैं कभी भी थ्रू व्हाट्सएप. आप क्वेश्चन करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन, और डिटेल में समझाऊंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू go through at your own. So with this, I am ending my video today with a request that you people would definitely take care of what I have said today. Okay, so thank you very much.
Take very good care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you.